we have discussed the definition of carbohydrate, old definition, new definition, then classification of carbohydrate on the basis of hydrolysis and on the basis of reducing nature. Over yesterday. Now I'm going to start means this monosaccharide. Now I'm going to start the information about the example of monosaccharide. So as I informed you, two examples are given in your NCERT book of monosaccharide, that is glucose and fructose. Glucose and out of these two, glucose we need to study the complete information, preparation, physical property, chemical. But fructose we need to discuss only structure. फ्रक्टोज में हमको केवल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है और ग्लूकोज में हमको पूरा पढ़ना है. तो पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ग्लूकोज. रिमेंबर वी आर glucose and fructose. The first one is glucose. So, first information कि glucose is present in nature. In nature, where it is present in sweets, not in ठीक है unripe grapes. Ripe grapes means पके हुए जो होते हैं उसमें means sweet. So this is its means you can say occurrence in nature, but we can prepare the glucose by artificial method or by chemical method also. So what are the chemical method by which we can prepare the glucose? So glucose can be prepared from two biomolecule or two carbohydrate you can say. ग्लूकोज दो कार्बोहाइड्रेट से बनाया जा सकता है, सुक्रोज एंड स्टार्च. एज यू नो yesterday starch is a poly and sucrose is a di. So glucose can be prepared by some other method also, but in your syllabus from sucrose or from starch. सुक्रोज इज कॉल्ड केन सुगर, जो हम चीनी खाते हैं और शुगर केन से बनता है और किस फॉर्मेट में यूज होता है, शुगर के फॉर्म में, इसलिए इसको वाला शुगर. सो when C12H22O11, this formula you have seen 3-4 times in solution chapter, sucrose. So when sucrose is boiled with dilute HCl or H2SO4, ठीक है, इन एल्कोहलिक सोल्यूशन, या तो डाइल्यूट HCl ले लीजिए या H2SO4 को एल्कोहलिक सोल्यूशन में लीजिए, दो में से कोई एक. देन इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस. तब ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, गिव द टू मोनोसैकेराइड, टू यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड और टू monosaccharide because sucrose is a disaccharide. One is C6H12O6, another is also C6H12O6. Formula is same but both are different. One is glucose, another is fructose. ठीक है, one is glucose, another is fructose. So when sucrose undergo hydrolysis with dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution, then it give equal mole of ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्वल अमाउंट देता है, इक्वल मोल देता है, 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल फ्रक्टोज. दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम स्टार्च. सो दिस मेथड इज कॉमर्शियल मेथड, मीन्स इन इंडस्ट्रीज by which method, yeah, from which carbohydrate the glucose is obtained, the glucose is obtained from the starch. So when starch is boiled
with dilute H2SO4 at 393 Kelvin. 393 Kelvin. So 273 is 0 degree, 393. So it is approx 120 degree Kelvin. ठीक है. Then it undergo hydrolysis. Hydrolysis सब में होगा. Reaction will be not with the acid, that will be with water. Hydrolysis होगा in acidic medium में. Then it produce n number of glucose. इसमें केवल ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है. That's why it is commercial method कि केवल ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, in large amount ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है. So when starch, ऐसे तो यहाँ लिखा है स्टार्च या सेलुलोज कोई भी ले सकते हैं. स्टार्च और सेलुलोज बोथ आर पॉलीसेकेराइड, बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10O5. दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है C6H10O5 होल n. Whole n is representing it is a polymer, means polysaccharide. So when starch boil with dilute H2SO4 at 393 Kelvin temperature and 2 to 3 atm pressure, then it form glucose. तब ये बनाता है ग्लूकोज. So you have the two method. इसका दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं. बोर्ड में क्वेश्चन आता है, by hydrolysis of sucrose what we will get? What is the hydrolysis product of sucrose? Sucrose का hydrolysis product क्या होता है? That is glucose and fructose. What is the hydrolysis product of starch? Starch का hydrolysis product क्या होता है? Cellulose का hydrolysis product क्या होता है? That is glucose only. या ऐसे देख सकता है, which of the following will give the glucose on its hydrolysis? इनमें से कौन ग्लूकोज देता है hydrolysis process से? Which one is the commercial method for formation of glucose, manufacturing of glucose? That is by boiling of starch or cellulose. Now preparation method is over. Preparation method हमारा complete हो गया. Next is properties of glucose. Glucose की तो another information which I had given yesterday also कि glucose is having aldehyde group. ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है एंड 6 कार्बन C6. सो इट इज एल्डोहेक्सोज. होता क्या है? एल्डोहेक्सोज मींस 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड विच इज हैविंग द मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड. जिसके पास मेन फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड. नेक्स्ट, ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज. ग्लूकोज को और क्या नाम कहते हैं? डेक्सट्रोज कहते हैं. ग्लूकोज से क्या क्या बना होता है? स्टार्च और सेलुलोज, जैसे अभी आपने देख लिया. नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ. अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है ग्लूकोज. ठीक है, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे कि ये डी सीरीज क्या है और डेक्स्ट्रोरोटेटेड तो पता ही है, डी सीरीज क्या है वो बाद में बात करेंगे. सो नाउ व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला? सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज यू नो, C6H12O6. व्हाट इज इट्स IUPAC नेम? IUPAC नेम क्या होगा? सो IUPAC नेम लिखने के लिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन and 6 कार्बन. Out of 6 कार्बन, second, third, fourth and fifth carbon, second, third, fourth, fifth and sixth, these 5 carbon is having OH group. So what will be its IUPAC name? 2, 3, 4, 5, 6. 5 कार्बन पे है, 2, 3, 4, 5, 6. पेंटा 5 टाइम्स है. पेंटा क्या 5 टाइम्स है? OH. OH यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है. मेन फंक्शनल ग्रुप इज CHO. So its name will be not all. Its name will be hydroxy. Pentahydroxy. 2, 3, 4, 5, 6. Pentahydroxy. 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है. पेंटाहाइड्रोक्सी 6 कार्बन की चेन है. हेक्सेन हो गया.
और CHO लगा है, सो सफिक्स विल बी अल, सो हेक्सेनल, हेक्सेनल 2 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल, इट इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का IUPAC नाम ये है 234 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल और हेक्सेन 1 अल। ठीक है, IUPAC नेम हो गया, फार्मूला हो गया, एल्डोहेक्सोज हो गया, डेक्सट्रोज हो गया। नाउ सी मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिया हुआ है। नाउ अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, एंड इन दिस the all the chemical properties of glucose is showing something about the glucose, which is proving something about the glucose। यहाँ जितनी केमिकल प्रॉपर्टी है वो ग्लूकोज के एक एक नेचर को प्रूव कर रही है। टोटल 5 और 6 केमिकल प्रॉपर्टीज है, मींस केमिकल रिएक्शन है, एंड ईच रिएक्शन इज गोइंग टू बी प्रूव समथिंग। हर रिएक्शन कुछ न कुछ प्रूव कर रहा है। क्या प्रूव कर रहा है, देखिए मैं आपको एक फाइनल दिखलाता हूँ फिर वापस आता हूँ। सी ग्लूकोज के इतने रिएक्शन हैं 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन विथ HI से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या प्रूव कर रहा है, रिएक्शन विथ HI इज प्रूविंग दैट इट हैज 6 कार्बन एंड ऑल द 6 कार्बन आर अटैच इन स्ट्रेट चेन। मतलब HI से रिएक्शन करा के ये पता किया गया, ये प्रूव किया गया कि इसमें जो 6 कार्बन है ऑल द 6 कार्बन आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन, मींस नो एनी कार्बन इज इन साइड चेन। भाई 6 कार्बन है तो 6 कार्बन में ये भी हो सकता है कि सारे के सारे 6 कार्बन बैक टू बैक अरेंज हो और मे बी कोई एक दो कार्बन साइड में अरेंज हो मेथिल ग्रुप में के फॉर्म में। सो रिएक्शन विथ HI इज शोइंग दैट इट्स ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन फॉर्म। इसके सारे 6 के 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अटैच्ड होते हैं। दिस इज प्रूव्ड बाय रिएक्शन विथ HI। सेकेंड, the reaction with hydroxylamine, it is called hydroxylamine NH2OH। OH के लिए हाइड्रोक्सिल कहा जा रहा है, NH2 के लिए अमाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन। एंड रिएक्शन विथ HCN, it is called hydrogen cyanide, hydrogen cyanide plus reaction with bromine water, reaction with bromine water, reaction with hydroxylamine, reaction with hydrogen cyanide and reaction with bromine water. These three reactions are showing or proving that glucose is having aldehyde group। ये इस बात को प्रूव उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा C6H12O6 एल्डिहाइड ही है, ये कार्बोक्सिलिक नहीं है, अल्कोहल नहीं है, ईथर नहीं है, ईस्टर नहीं है। कैसे पता चला कि ये एल्डिहाइड है? सो बाय द रिएक्शन ऑफ दीज थ्री इट हैज बीन प्रूवन दैट इट एल्डिहाइड ग्रुप। ये प्रूव हुआ कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता। नेक्स्ट दैट इज रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, reaction with acetic anhydride and reaction with HNO3, acetic anhydride and HNO3, it is proving that these two reactions are proving that it has 5 OH group और it has OH group। ये रिएक्शन प्रूव कर रहे हैं कि इसके पास OH ग्रुप है। These are proving that it has OH group, means HI से रिएक्शन प्रूव कर रहा है कि all the 6 कार्बन are attached in straight chain। NH2OH, HCN और ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन प्रूव कर रहा है कि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। एंड रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड और HNO3 से प्रूव हो रहा है कि इसके पास OH ग्रुप है। नाउ हाउ इट इज प्रूविंग, सी हर रिएक्शन कुछ ना कुछ प्रूव कर रहा है और यही क्वेश्चन पूछता है कि राइट द रिएक्शन टू प्रूव दैट, write the reaction to prove that
all the 6 carbon in glucose is present in or linked in straight chain form. पूरे 6 के 6 कार्बन जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन फॉर्म में अटैच रहते हैं और लिंक्ड रहते हैं. प्रूव करिए. देन कैसे प्रूव हुआ? ग्लूकोज CHOH 4 times. CHO है, CHOH 4 times. C CHOH 4 होल 4 कर दिया गया एंड CH2OH. सो हीटेड ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग. ये वर्ड फिर से आ गया. एक था प्रोलॉन्ग डायलिसिस और ये आ गया प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग. मीन्स बहुत लंबे समय तक क्या करना? हीट करना. सो व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड स्ट्रांगली विथ hydrogen iodide, then hydrogen comes and attach here and oxygen and OH are removed from here. So it forms हाइड्रोकार्बन. तब ये बनाता है हाइड्रोकार विच इज एन-हेक्सेन. एन मीन्स नॉर्मल हेक्सेन. प्रॉपर्टी वगैरह चेक की गई तो प्रोडक्ट है नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेक्सेन इज प्रूविंग दैट क्योंकि यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है. जैसे जो था वैसे हुआ है, केवल रीडक्स. ऑक्सीजन के जगह पे हाइड्रोजन आकर के अटैच हो गया and it forms CH3, CH2, 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 CH3. So it is proving that कि all the 6 carbon atom in glucose are attached in or linked in a straight chain format. So this is the first one. और कभी कभी ऐसा ही पूछता है कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग. वहां पे केवल स्टेटमेंट दे देगा. reaction of glucose with HI, heating of glucose with HI, then it give the normal hexane. What it proved? It proved that all the 6 carbon in glucose are attached or linked in straight chain form. Now, second, reaction of glucose with hydroxylamine and hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide and hydroxylamine. Hydrogen cyanide and hydroxylamine. So hydrogen cyanide and hydroxylamine. When glucose react with hydroxylamine से react करता है, then what will be happen? H2 release out from here. H2 यहाँ से निकलता है, O यहाँ से निकलता है. So H2 will be released out from here. So nitrogen will have the 2 free valency क्योंकि H2 निकल रहा है. And oxygen remove out from here, so carbon becomes 2 free valency. Now carbon की भी 2 free valency हो गई, nitrogen की भी 2 free valency हो गई. So they both will be combined by the double bond and it forms CH double bond NOH. CH double bond NOH. This product is called oxime और इसको कहा जाता है ग्लूकोज ऑक्सीम. Glucose oxime. And second, when HCN react, जब HCN react कर रहा है तो यहाँ पे CHO कैसे है? CH double bond O. This bond is going to be broken down. Oxygen get negative charge, carbon get positive charge, and in HCN it is broken down. H get the positive charge, CN get the negative charge. So positive attach with negative to form OH, negative attach with carbon to form CN. So डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेक होता है और ऑक्सीजन से आके H अटैच होके OH बनाता है, कार्बन से CN जाकर के CN बनाता है. सो इट फॉर्म दिस CN
CHCnOH, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। इसको क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रीन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। नाउ व्हाट दीज टू प्रोडक्ट आर प्रूविंग हियर? इन दोनों प्रोडक्ट में क्या प्रूव हो रहा है? बोथ द प्रोडक्ट आर प्रूविंग दैट it move and release the oxygen from the first carbon, and these two are react with carbonyl group only. ये दोनों किससे रिएक्ट करते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप फिर से आ गया अल्कोहल वाला, मींस एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड ईस्टर। so these both are react with carbonyl group and in कार्बोनिल ग्रुप ओनली विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे ये रिएक्शन आएगा कि हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड HCN विथ कार्बोनिल ग्रुप, बट कार्बोनिल ग्रुप में रिएक्ट विथ एल्डिहाइड कीटोन, नॉट कार्बोक्सिलिक एस्टर। सो ये दोनों यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं, सो दे आर प्रूविंग दैट ग्लूकोज इज हैविंग कार्बोनिल ग्रुप। तो ये प्रूव कर रहा है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप है, बट कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकता है। तो आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, व्हेन साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड टू सी द प्रॉपर्टी, then they have find that the hydroxyl amine attach at first carbon and HCN attach at first carbon। हाइड्रोक्सिल अमाइन फर्स्ट कार्बन पे आकर के रिएक्ट कर रहा है, HCN भी फर्स्ट कार्बन पे रिएक्ट कर रहा है, मीन्स द फर्स्ट कार्बन इज कार्बोनिल ग्रुप। इसका मतलब पहला कार्बन कार्बोनिल ग्रुप, एंड इफ फर्स्ट कार्बन इज कार्बोनिल ग्रुप देन दैट विल बी एल्डिहाइड। क्योंकि हमको ये तो पता चल गया कि ये या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है, इतना तो क्लियर है। बट इन दीज टू यू कैन सी एल्डिहाइड फर्स्ट पोजीशन पे होता है एंड कीटोन फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होता है। कीटोन इज एज सेकंड, थर्ड और एनी अदर पोजीशन। सो इन दिस साइंटिस्ट हैव सीन कि द चेंज व्हिच विल बी हैपन विद एनर्जी फर्स्ट कार्बन पे हो रहा है। सो दिस चेंज एट फर्स्ट कार्बन इज प्रूविंग दैट इट इज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। ये चेंज एट फर्स्ट कार्बन प्रूव कर रहा है कि इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। सो पहला इंफॉर्मेशन, NH2OH and HCN are proving that it has carbonyl group। NH2OH और HCN ये प्रूव कर रहे हैं कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन, बट आफ्टर सीइंग द प्रोडक्ट scientists have identified that the change is takes place at the first carbon, so that must be aldehyde। क्योंकि चेंज पहले कार्बन पे हो रहा है तो वो एल्डिहाइड ही होगा, कीटोन नहीं, क्योंकि कीटोन जो होता है वो सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन या फोर्थ कार्बन पे होता है, फर्स्ट कार्बन पे नहीं होता है। सो बाय दिस रिएक्ट बाय द प्रोडक्ट साइंटिस्ट हैव फाइंड द इंफॉर्मेशन दैट इन ग्लूकोज विच ग्रुप इज प्रेजेंट? एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, नॉट कीटोन। केवल एल्डिहाइड या कीटोन हो ही सकते हैं। कीटोन होता तो सेकेंड कार्बन पे चेंज होता, एल्डिहाइड है फर्स्ट कार्बन है। रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। सो व्हेन ब्रोमीन वाटर, ठीक है, हियर ब्रोमीन वाटर इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ब्रोमीन वाटर किसका वर्क कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा रहा है। ब्रोमीन वाटर इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाउ? देन सी ब्रोमीन वाटर, सो Br2 प्लस H2O, Br2 और H2 रिएक्ट करके HBr बना लेते हैं, एंड दैट नेसेंट ऑक्सीजन कम्स एंड ऑक्सीडाइज। नेसेंट ऑक्सीजन आके ऑक्सीडाइज करता है। तो Br2 मींस ब्रोमीन वाटर इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर। यहाँ पे ब्रोमीन वाटर क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। सो व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, तो ये प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी चेक की गई तो इट्स प्रॉपर्टी सिमिलर टू द ग्लूकोनिक एसिड। इसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर थी? ग्लूकोनिक एसिड की। ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा गया तो इन दिस द फर्स्ट कार्बन इज कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पहला कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला था, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। और फिर जब इस स्ट्रक्चर को ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से मैच किया गया तो पाया गया कि
सेकेंड कार्बन से सिक्स्थ कार्बन में कोई चेंज नहीं है, चेंज इज ओनली इन फर्स्ट कार्बन, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बना है, सो इट मींस इट इज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि चेंज केवल फर्स्ट कार्बन में था, सेकेंड कार्बन या थर्ड कार्बन में नहीं था। सो ये प्रूव कर रहा है कि ये कीटोन नहीं हो सकता, इट मस्ट बी एल्डिहाइड। So three reactions are proving that aldehyde is means glucose is having aldehyde group, not ketone. First is reaction with NH2OH. Whatever the changes takes place at the first carbon, which prove that it is aldehyde. Reaction with HCN, whatever the changes takes place, that is proving at first carbon, which will again prove that it is having aldehyde group. And with bromine water, see here it is written bromine water is a mild oxidizing agent. So by reaction with bromine water, it is also proved that it is having aldehyde because the oxidation is takes place at first carbon, not any other carbon. क्योंकि oxidation किस कार्बन का हुआ है? फर्स्ट कार्बन का हुआ है, किसी और कार्बन का नहीं हुआ। सो इज एल्डिहाइड। अगर किसी और कार्बन पे होता तब आप कह सकते थे कि ये कीटोन हो सकता है। नो, सी द नेम, इस नाम को भी याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि राइट द रिएक्शन टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड। सो ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो ग्लूकोज में कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर दिया गया, बन गया ग्लूकोनिक एसिड। सो ग्लूकोनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा एंड ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड। देखिए ऑक्सीडेशन दो से हो रहा है, हियर द ऑक्सीडेशन इज विथ टू, one is with bromine water. Bromine water is mild oxidizing agent, means weak oxidizing agent. Second is nitric acid. Nitric acid is a strong oxidizing agent. नाइट्रिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें आपको जो नाइट्रिक एसिड का देखना है वो ये वाला पोर्शन नहीं देखना है, इससे मतलब नहीं है। ये ग्लूकोनिक एसिड जो पीछे बना था, इस ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करा रहा था, हमको इससे मतलब नहीं, हमारे पास तो ग्लूकोज है। सो when glucose undergo oxidation with strong oxidizing agent, that is nitric acid, then it form a product of एक प्रोडक्ट बनाता है जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ केवल एक बन रहा था, ब्रोमीन वाटर के साथ केवल एक बन रहा था, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड के साथ दो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट वाले पे और लास्ट वाले पे। सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड नेम is saccharic acid. Remember this name. So saccharic acid is having a strong oxidation acid, first and last carbon, पहला और आखिरी दोनों ऑक्सीडाइज हो जाता है, but bromine water is mild oxidizing agent, so it oxidize only aldehyde, not the लास्ट का। ये केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, लास्ट कार्बन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। सो हाउ कैन वी प्रिपेयर, ठीक है, हाउ कैन वी प्रिपेयर ग्लूकोनिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, दैट इज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर। हाउ कैन वी प्रिपेयर सैकेरिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, दैट इज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड। Or when glucose react with nitric acid, then what it will produce? Saccharic acid. And when glucose react with bromine water, then what it produce? Gluconic acid. Gluconic acid और saccharic acid में क्या difference है? Gluconic acid is having one carboxylic group at the first carbon, and saccharic acid is having two carboxylic group at the first and sixth carbon. ठीक है? Now another information, ये जो right side वाला reaction है, ये reaction दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। वो ये बता रहा है कि नाइट्रिक एसिड कैन बी ऑक्सीडाइज ग्लूकोनिक एसिड एज वेल एज ग्लूकोज। नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और ग्लूकोनिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है।
एंड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ, इसमें भी नाइट्रिक एसिड आपने यूज कर लिया, इसमें भी नाइट्रिक एसिड यूज कर लिया, तो दोनों के ऑक्सीडेशन से सेम प्रोडक्ट बनता है सैकेरिक एसिड, दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. So gluconic acid will undergo oxidation with nitric acid, then it forms saccharic acid, and glucose undergo oxidation with nitric acid, then it also again forms saccharic acid. तब भी ये saccharic acid बनाता है. And what is difference in saccharic acid and gluconic acid? In gluconic acid, carboxylic acid is present at first carbon, that is monocarboxylic group, and in saccharic acid, carboxylic acid is present at two places, first and last carbon. Saccharic form by strong oxidation, gluconic form by moderate or mild oxidation. So this is the next chemical property. Now is there, that is acetic anhydride, which is not here I think. So I am going to the reaction. मैं यहाँ पे reaction लिख देता हूँ, reaction आप note down कर लीजिएगा. It is in your answer. So see, when CHO, then CHOH whole 4, मतलब 4 times ये है, and CH2OH react with acetic anhydride means CH3CO whole twice O. ठीक है, acetic anhydride CH3CO whole twice O. So what it form now, see, जब ये reaction होता है, by this reaction the 5CH3COO comes and means यहाँ पे we will take the 5, हम कितना पार्टिकल लेंगे, that is 5, ये 5 होगा. It will be broken down, जब ये ब्रेक होगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, CH3CO then O then CO then CH3CO whole twice, दो बार CH3CO है, एक O है. सो ये या तो इस साइड से ब्रेक होगा या तो उस साइड से, नो मैटर लेफ्ट और राइट. सो व्हेन इट विल बी ब्रोकन डाउन इट गिव्स CH3CO एंड CH3COO, दो बनाएगा, CH3CO CH3COO, ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा. दिस CH3COO -1 will be displace all the OH minus from the glucose. ग्लूकोज में से सारे OH माइनस को वहां से रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CHO देन CH से आके क्या अटैच हो जाएगा, दैट इज OOC CH3. CH3CO को ऑक्सीजन से अटैच करना है, इसलिए लिखा है OOC एंड दिस विल बी होल 4, 4 था 4 आ जाएगा. देन आफ्टर नेक्स्ट विल बी देयर, दैट इज CH2, अगला फिर क्या आ जाएगा, CH2 और OH के प्लेस पे क्या आ जाएगा, दैट इज OOC CH3. So total 5 OOC CH3 means CH3COO displays the 5 OH, 5 OH की जगह पे 5 CH3COO आ जाते हैं. एंड OH मूव विथ CH3CO, OH CH3CO के साथ मिल करके जा करके क्या बनाता है, OH CH3CO के साथ मिल करके CH3CO और OH आगे आ जाएगा, मीन्स एसिटिक एसिड. तो OH आकर के एसिटिक एसिड बनाता है एंड CH3COO ग्लूकोज से रिएक्ट करके
प्रोडक्ट बनाता है दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट CH3COO- को एसीटेट आयन कहते हैं जैसे आपको पता है। एंड 5 so now the name will be there penta acetate glucose penta acetate which is proving that जो ये प्रूव कर रहा है कि it has 5 OH। ये बता रहा है कि ग्लूकोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी ग्लूकोज में 5 OH होता है। that's why that 5 OH are displaced by एसीटेट आयन। वो 5 OH एसीटेट आयन से डिस्प्लेस हो रहे हैं। So this reaction is proof that it is pentahydroxy। So ये रिएक्शन प्रूव कर रहा है कि ये पेंटाहाइड्रोक्सी नेचर का होता है। So how many properties are becomes proven by these chemical reaction? ये केमिकल प्रॉपर्टी कहिए ग्लूकोज की या प्रूविंग कहिए। फर्स्ट HI is proving that its all 6 carbons are arranged in straight chain form. Reaction with hydroxyl amine, hydrogen cyanide, bromine water is proving that it has aldehyde group. Reaction with HNO3 and reaction with acetic anhydride is proving that it has alcohol group. And reaction with acetic anhydride is proof that it has 5 OH। ये दोनों 5 OH ग्रुप को प्रूव नहीं कर रहे हैं। HNO3 is only proving it has OH। HNO3 केवल प्रूव कर रहा है कि इसके पास OH है, ये नहीं प्रूव कर रहा है कि 5 OH है। And this CH3CO is proving that it has 5 OH। तो अगर क्वेश्चन कहेगा कि केमिकल रिएक्शन लिखिए टू प्रूव दैट ऑल द 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन, so the reaction will be with HI। If the question will be there, write the reaction to prove that glucose is having aldehyde group, then reaction with hydroxyl amine, reaction with hydrogen cyanide, and reaction with bromine। If question will be there, write the reaction to prove that glucose is having alcohol group। अल्कोहल ग्रुप है, केवल ये प्रूव करना है। देन बोथ द रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड एंड HNO3। एंड इफ यू वांट टू प्रूव दैट इट इज हैविंग 5 OH ग्रुप, पर्टिकुलर 5 है, ये प्रूव करना है। देन रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड ओनली, नॉट विथ HNO3। HNO3 ये है कि OH है, लेकिन ये प्रूव नहीं कर रहा कि 5 OH है। एंड एसिटिक एनहाइड्राइड ये प्रूव कर रहा है कि 5 OH हैं। तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज। आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। सो ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी अभी कंप्लीट हुई। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज ही सबसे बड़ा हमारा पार्ट है। रिमेम्बर, ग्लूकोज में ही हमको सबसे ज्यादा चीजें पढ़नी है, समझनी है।